how to pack for your curly hair when you're traveling. Now your travel can be a short one or a very long one. You can travel to any weather, you can have any hair type. Everything I'm going to cover in this video. The target will be to achieve great looking curls with minimal products and very little time, because holiday पर बहुत ज़्यादा time होता नहीं है बालों को देने के लिए. So yes, that is what my target is for this video. If this is what you're looking for, then keep on watching. Hello everyone, this is Khushbu Singhvi and welcome back to my YouTube channel. मैं भी recently एक बहुत ही लंबे हॉलिडे से वापस आई हूँ and I thought I should make this video because on and off मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं what do you travel with, मतलब what products do you carry, how do you manage your curls looking in a certain way and all of this. So I thought let's make a whole detailed video on this. So yeah. Also, I just want to say one thing. मैंने देखा है कि बहुत बार a lot of curlies say and feel कि we don't want to care about our hair when we're on a holiday. I just keep my hair in a bun and that is perfectly okay. If this is what you're comfortable in, it's perfect. It's amazing. You have to do what you are comfortable in. पर मेरे साथ क्या होता है when I'm traveling, I click a lot of pictures and I love to flaunt my curls. तो मुझे लगता है कि if I'm not flaunting my curls on a holiday, when will I do it? Because that is when I click the maximum pictures. Those are my memories and I just love to have lovely curls every single day of my holiday. तो अगर मैं सिर्फ 4 से 5 मिनट देकर अपने बालों को अच्छा लगा सकती हूँ, I would do that. And this is me. If this is you also, then definitely keep on watching this video. ठीक है. So one thing I want to say, जैसे अगर आप एक short holiday पे जा रहे हो, just 3 to 4 days या 5 days, and you're going to stay in a decent good resort, तो normally मैं इस केस में shampoo और conditioner carry ही नहीं करती हूँ. I use the one from the resort, but I do carry a leave-in or a gel, right? तो because it's a short holiday, हो सकता है मैं बाल बस एक ही बार wash करूँ, उसके लिए I don't find it worth normally carrying a shampoo or a conditioner, because normally these good resorts have good products. मतलब मेरे को तो चल जाता है. So if you're comfortable with that, even you can do it. If not, obviously I will be recommend what to carry. So yeah. So let's start with the cleanser. Now, irrespective आप किधर भी जा रहे हो, कैसा भी weather है, whatever is your hair type, one thing that I recommend to carry on your holiday is a gentle clarifying shampoo या फिर कोई strong cleanser, but which is again gentle. मतलब it should not be harsh on your hair, आपके बालों को एकदम dry कर दे वैसा नहीं, but something on the gentler side. Now, why do I recommend this? Because normally if you're going to a cold weather है ना, तो you will not wash your hair for 5-6 days क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो obviously you don't end up washing your hair very often. But holiday we are almost out all day. We are exposed to much more environmental things, a lot more pollution than usual because हम अंदर होते ही नहीं, and we are just traveling somewhere or the other. So having a clarifying shampoo is good to just get rid of all of that dirt. But again, because we'll not have time for deep conditioning on a holiday, तो harsh नहीं होना चाहिए. और या फिर अगर आप कोई बीच डेस्टिनेशन जा रहे हो या फिर आप समर्स में भी बाहर जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप स्विमिंग करेंगे और यू विल बी इन्वॉल्व इन इन सम वाटर एक्टिविटीज, मे बी सम वाटर स्पोर्ट्स, और यू माइट जस्ट गो फॉर अ बाथ एट द बीच, या फिर इवन अदरवाइज आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हो. सो इन दैट केस ऑल्सो आई फील अ जेंटल क्लैरिफाइंग शैम्पू इज परफेक्ट टू यूज टू गेट रिड ऑफ दैट क्लोरीन फ्रॉम द पूल, या फिर जो भी बीच का वाटर है, वट एवर इट इज, जस्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दैट. क्लैरिफाइंग या फिर अ स्ट्रॉन्ग क्लेंजर इज अ ग्रेट ऑप्शन. So the product that I personally recommend is the Maintain का clarifying shampoo. It's a very gentle one. या फिर जो All Doer का shampoo है, that's a good strong cleanser और वो बालों को इसे dry नहीं करता है और अच्छे से clean कर देता है. Another option can be the North Wish shampoo. वो again काफी cleansing है but एकदम भी dryness cause नहीं करता है. So these are the type of shampoos I normally carry और मैं हमेशा try करती हूँ कि मैं ऐसा एक trial size bottle लेकर जाऊँ. ये Maintain का है, ये उनका ओसो सॉफ्ट है पर उनका ऐसा ही ओसो क्लीन भी आता है जिसकी मैं बात कर रही थी. यू कैन कैरी दिस, और मेरे पास ऐसी 2 बॉटल्स हैं, दोनों ओसो सॉफ्ट और ओसो क्लीन. सो अगर मैं ये वाला भी नहीं कैरी कर रही हूँ, आई जस्ट फिल इन द शैम्पू. इसमें मुझे जो भी कैरी करना है, इससे ज्यादा शैम्पू का नीड आपको नहीं होगा इफ योर ट्रिप इज विद इन अ मंथ टाइम. सो दिस इज अ गुड इनफ क्वांटिटी, इससे ज्यादा आपको नीड नहीं होगा. Now in addition to this, only if you are traveling to a place जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, it's very hot, it's very humid, आपको लगता है कि आप अपने बाल बहुत ज्यादा वॉश करोगे. फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी इन्वॉल्विंग इन वाटर एक्टिविटीज एवरी डे. जैसे आप आज भी बीच में जा रहे हैं, आप कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे, if you're fond of that, और समथिंग दैट मेक्स यू फील अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से दैट यू विल हैव टू वॉश योर हेयर वेरी वेरी ऑफन. इन दैट केस आप अपने साथ एक को-वॉश या फिर एक बहुत जेंटल मॉइस्चराइजिंग शैम्पू भी कैरी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेंटेन का तो को-वॉश जो ट्रैवल साइज आता है, छोटू सा, ये इट्स वेरी इजी टू कैरी. या फिर आप कर्ल अप का को-वॉश यूज कर सकते हैं, और या फिर आप यू कैन इवन टेक अ मॉइस्चराइजिंग शैम्पू जैसे ट्रू फ्रॉग. इट्स अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, बहुत जेंटल सा है. या फिर मेंटेन का ये वाला ओसो सॉफ्ट, ये भी छोटू सा बॉटल है. तो इनमें से आप कोई भी एक शैम्पू को कैरी कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज इट फॉर क्लेंजर्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंडीशनर. अब इस डिपार्टमेंट में ना आई लव मल्टीपर्पज प्रोडक्ट, मतलब कुछ ऐसा हो जिसे मैं एज ए कंडीशनर भी यूज कर सकूं, एज ए डीप कंडीशनर भी यूज कर सकूं, एज ए लीव-इन या क्रीम भी यूज कर सकूं. दिस इज माय प्रायोरिटी. आई टेल यू व्हाई. ऐसा नहीं है कि मैं हॉलिडे पर डीप कंडीशन करूंगी, बट समटाइम्स व्हेन यू हैव अ वेरी लॉन्ग हॉलिडे, तो
आई डोंट वांट माय हेयर टू गेट ड्राई, तो जिस दिन भी मेरे पास टाइम होएगा, इफ आई जस्ट वांट टू कीप इट फॉर 5-6 मिनट्स, आई कैन, यू नो, आई हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल. और इवन अदरवाइज मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, सो फॉर मी a conditioner which is a little heavy या फिर जो deep conditioner है, even if I keep it for 3-4 minutes, it gives me better results than keeping a normal conditioner for 3-4 minutes. So this is what I prefer. You can choose according to your hair type, but I feel in this category multi-purpose products are the best. And सेकंड मेरा प्रायोरिटी होता है उसका स्लिप बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग आउट देयर आर हाई चांसेस, यू नो, दैट योर हेयर कैन गेट लिटिल टैंगल्ड. यू नो, यू आर आउट ऑल डे, आप एक्टिविटीज कर रहे हो, किधर भी सो रहे हो, समटाइम्स यू जस्ट स्लीपिंग इन अ बस, इन अ कार, व्हाइल यू आर ऑन द गो, इट इज पॉसिबल, राइट? सो योर हेयर कैन गेट मोर टैंगल्ड, सो गुड स्लिप इज एसेंशियल. ये मेरी दो प्रायोरिटीज होती हैं व्हेन आई एम चूजिंग माय कंडीशनर. सो या, माय मोस्ट फेवरेट थिंग टू ट्रैवल विद. आई थिंक जब से लॉन्च हुआ है पिछले 2-3 साल में, मैंने इसी को हर ट्रैवल में इतना यूज करा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दी मेंटेन का कंडीशनर. नाउ दिस कैन बी यूज्ड एज अ कंडीशनर, एज अ डीप कंडीशनर एंड एज अ क्रीम. सो इसका स्लिप भी बहुत अच्छा है, ये काफी मॉइस्चराइजिंग है, मेरे बालों को ये बहुत ज्यादा सूट करता है. सो आई लव टू कैरी दिस. तो यू सी अकॉर्डिंगली विच वन डू यू लव. द स्लिप ऑफ जो आपके लिए बहुत अच्छा नरिशिंग सा कंडीशनर है, आप कोई सा भी कैरी कर लो, मेरा फेवरेट ये है. ऑप्शन कैन बी आशपा का कंडीशनर. इसका भी स्लिप बहुत सही है, ये काफी ज्यादा नरिशिंग है, एंड इन एन इमरजेंसी यू कैन यूज दिस एज लीव इन ऑल्सो. तो अगर आपका बहुत ही शॉर्ट सा हॉलिडे है, यू कैन ऑलवेज जस्ट कैरी अ कंडीशनर, यू नो, विच वर्क्स फॉर यू एज ए लीव इन ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ कैरिंग अ सेपरेट लीव इन, बिकॉज उसका नीड नहीं होता है. मैं तो बहुत बार ऐसा करती हूँ, अगर मैं इधर ही कहीं गोवा के आसपास जा रही हूँ, इन दैट केस ये मेंटेन वाला तो वैसे भी यू कैन यूज एज अ क्रीम, नहीं तो ये मैं कैरी कर लेती हूँ. दिस ऑल्सो आई कैन यूज एज अ क्रीम. अनदर ऑप्शन कैन बी रिक्विल. मेरे बालों के लिए तो मुरमुर बटर वन वर्क्स बेटर. उसका ट्यूब भी छोटा सा है, सो इट्स इजी टू कैरी, दैट वर्क्स फॉर मी एज ए लीव इन ऑल्सो. स्लिप भी बहुत अच्छा है, बहुत मॉइस्चराइजिंग है. पर अगर आपके बाल वेवी हैं तो आप बबासू बटर वाला कैरी कर सकते हैं. एंड ये दोनों वेवी, कर्ली, सब हेयर के लिए वर्क करते हैं. सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. अगर जो भी आपके बाल हैं आप इन्हें कैरी कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टाइलर्स. तो अब नॉर्मली अगर एक शॉर्ट हॉलिडे है तो मैं कंडीशनर ही कैरी करती हूँ, उसके साथ में अलग से लीव इन या क्रीम कैरी नहीं करती हूँ, बिकॉज मेंटेन वन कैन एनीवे बी यूज्ड एज अ क्रीम. एंड एज आई सेड, जैसे आशपा या रिक्विल है, ये फॉर मी दे वर्क ग्रेट एज अ लीव इन ऑल्सो, या क्रीम, जैसे भी कुछ भी कहना चाहो. सो आई डू नॉट कैरी सेपरेटली unless I'm going on a very long holiday or I'm going to a very cold destination, because if you're going to a very cold country or the weather is very dry and cold, you might need some extra moisturizing for your hair. So layering up your stylers is a great choice. Okay, so in that case I will definitely suggest carrying a leave-in or a cream. But what is most important for me here is, because on a holiday I refresh my hair a lot, because every day you cannot wash your hair, एक तो dry नहीं होते हैं बाल जल्दी, you are on the move, right? सो मैं सुबह उठकर नॉर्मली अपने बालों को 2 मिनट में रिफ्रेश कर लेती हूँ. दैट्स माई गो टू थिंग ऑफ डूइंग. आई ट्राई एंड एड अ क्लिप हियर, या फिर वीडियो के एंड में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी मैं कैसे रिफ्रेश करती हूँ अपने बाल. सो येस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट व्हाटएवर लीव इन आई एम कैरिंग, या फिर जिस भी कंडीशनर को मैं लीव इन या क्रीम जैसे यूज करना चाहती हूँ, दैट हैज टू बी गुड फॉर रिफ्रेशिंग माई हेयर. अब मेरा पर्सनल फेवरेट यहाँ पर है आशपा लीव इन. आई ऑलवेज कैरी दिस क्योंकि ये मुझे हमेशा अमेजिंग रिजल्ट देता है. तो अगर मैं अलग से एक लीव इन कैरी कर रही हूँ, इट हैज टू बी दिस. अदरवाइज मैंने जो कैरी करा है कंडीशनर में उसी को यूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी जिस हॉलिडे पे गई थी, तो वो बहुत लंबा था, प्लस इट वॉज टू अ वेरी कोल्ड कंट्री, तो मैंने ये लीव इन कैरी करा था, बट इस वाले बॉक्स में. आई डोंट कैरी द होल बॉटल क्योंकि मुझे नीड नहीं लग रहा था. ये चिन्नू सा बॉक्स है, छोटा सा. दिस वॉज इनफ फॉर मी फॉर यूजिंग अराउंड 7 to 8 टाइम्स इंक्लूडिंग रिफ्रेशेस, या पता नहीं मैंने ज्यादा भी यूज करा हो तो. सो या, दिस वाज इनफ फॉर मी. तो आप ऐसा कर सकते हो, यू कैन कैरी अ स्मॉल बॉक्स, या फिर कोई ट्रायल साइज आपके पास है, या व्हाटएवर यू वांट टू कैरी. फुल साइज भी करना है तो इट्स ओके, बट या, दिस इज व्हाट आई डू विद माय लीव इन एंड क्रीम. Okay, now let's talk about the final product, that are gels, which are most important for me, and I'll explain it to you why. But first I'll tell you what do I see in gels. तो जेल मैं चूज करती हूँ वेदर के हिसाब से, द प्लेस आई एम ट्रैवलिंग टू. इफ आई एम ट्रैवलिंग टू अ ह्यूमिड प्लेस, जैसे मैं अगर आप गोवा आ रहे हैं, और इफ आई एम ट्रैवलिंग टू अ वेरी ह्यूमिड प्लेस, या फिर कोई जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रीजी और विंडी रहता है, इन दैट केस आई डेफिनेटली चूज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल. लेकिन अगर मैं कोई विंटर डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ जहाँ पर वेदर ड्राई और कोल्ड रहता है, माई टारगेट विल बी मॉइस्चराइजिंग जेल विच इज, यू नो, a medium hold gel. This is what I definitely look for. And also the gel should be easy to use for refreshes. अभी कोई भी जेल जो बहुत ज्यादा कास्ट देता है, the gel which gives you a very hard cast, they are normally not the best for refreshes, because उनके साथ आप रिफ्रेश नहीं कर पाओगे. It will make your hair look weird. Because normally these gels work best on dripping wet hair. Even if it will protect my hair for longer, I still don't, because मेरे लिए refreshing बहुत ज्यादा important है holiday पर. That is what I do for most of the days. उसके अलावा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैरिंग 2 जेल्स, बिकॉज आई लव टू लेयर अप माई जेल्स. उसका एक बहुत सिंपल रीजन है, आप जब हॉलिडे पे होते हो, नॉर्मली आउट, तो हो सकता है कि इट्स मोर विंडी देन यूजुअल, आपके बाल ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स, बिकॉज यू आर डूइंग थिंग्स, आप इधर उधर घूम रहे हो ऑल द टाइम, राइट? सो हैविंग 2 जेल्स डेफिनेटली गिव अ मच बेटर होल्ड
प्लस जब आप 2 जेल्स यूज करते हो ऑन द वॉश डे तो आपके बाल होल्ड बेटर फॉर अ मच लॉन्गर टाइम. सो इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन मच एक्टिविटीज यू डोंट हैव टू वॉश योर हेयर ऑफन. इवन बाय डे 3, डे 4, कभी कभी तो इन कोल्ड वेदर आई इवन स्ट्रेच्ड इट टिल डे 6. माई हेयर लुक्स नाइस विद अ सिंपल रिफ्रेश बिकॉज ऑफ यूजिंग दोस 2 जेल्स. तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Now coming to the gels I carry, normally the 2 gels I carry is Curl Up and Ashpa. मैं कभी कभी बिना वेदर देखे भी यही 2 जेल कैरी कर लेती हूँ क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन वर्क्स ग्रेट फॉर मी. ये मेरे एकदम सुपर फेवरेट जेल्स हैं. So I would say see the gels you love, you are comfortable using, जो बहुत ज्यादा हार्ड कास्ट नहीं देते हो बट एटलीस्ट मीडियम होल्ड देते हो या फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो बालों को ज्यादा ड्राई नहीं करते हो, थोड़ा मॉइस्चराइजिंग हो बालों के लिए. whatever works for you carry. For example, for this particular holiday where I've recently gone, I carried the Curl Up gel and I carried the Maintain gel. Now I'll explain to you why. जो मेरा maximum stay था 16 days, that was in a very cold country. So I wanted gels that are moisturizing, जो एकदम ही मेरे बालों को dry नहीं करे, because very strong hold gels can dry out your curls a little, right? तो I wanted जो एकदम मेरे बालों को dry नहीं करे, medium hold दे, moisturizing हो, easy to use हो. So I chose these two. अभी ये बहुत ही सही gel है. This is a medium hold gel, medium to strong I can call it. और ये refreshes के लिए भी बहुत सही वर्क करता है. इवन द आशपा जेल वर्क्स अमेजिंग फॉर रिफ्रेशेस. तो इन दोनों में से आप कोई भी कैरी कर सकते हो या फिर ये दोनों कैरी कर सकते हो. मैंने मेंटेन क्यों करा, एक तो इसका बॉटल मुझे लगा ये बहुत ही ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, एकदम छोटू सा बॉटल है, सो वेरी कन्वीनियंट फॉर ट्रैवलिंग. और इसको मैंने 2-3 बार यूज करा था बिफोर गोइंग, एक्चुअली मे बी 4 times, और ये भी मुझे रिफ्रेशेस के लिए बहुत कंफर्टेबल लगा. अब ये जो है ना, ये इट्स मोर ऑफ अ मीडियम होल्ड जेल, लेकिन ये एकदम लाइट सा कास्ट देता है विच इज परफेक्ट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. ये बहुत नेचुरल लुकिंग से कर्ल्स देता है. तो मुझे लगा कि दिस कैन बी माय फर्स्ट लेयर एंड दिस कैन बी माय सेकंड लेयर, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड का नीड नहीं था. हाउएवर इट वाज वेरी विंडी वेयर आई वेंट, जो मैंने पहले रियलाइज नहीं करा, बट स्टिल दे डिड वेल, दे डिड रियली वेल. तो मैंने ये दोनों जेल्स कैरी करे थे. आप अपने हिसाब से कोई भी जेल्स कैरी कर सकते हो. सो या गाइज, दिस इज व्हाट आई कैरी फॉर माय हॉलिडे फॉर दी प्रोडक्ट्स. ना इसके अलावा मैं 2 और चीज कैरी करती हूँ. एक तो सैटिन प्रोडक्ट्स, ठीक है. आप या तो एक सैटिन का पिलो केस कैरी कर सकते हैं या फिर एक इलास्टिक केस कैरी कर सकते हैं. मैंने इलास्टिक केस ही किया था. आई पुट अ पिक्चर हियर. ये किसी भी पिलो पर फिट आ जाता है, तो इट्स वेरी इजी टू पुट एंड रिमूव. आप ये कैरी कर लो. पिलो केस है आपके पास तो पिलो केस कैरी कर लो. और इफ यू वांट टू कैरी अ बॉनेट, आपको लगता है बॉनेट में ज्यादा कंफर्टेबल है, आप बॉनेट कैरी कर लो. एनीथिंग दैट यू प्रेफर आउट ऑफ दीज. एंड आई ऑल्सो लव टू कैरी माई सैटिन स्क्रंचीज बिकॉज उसकी तो नीड होगी ही आपको हॉलिडे पर. सो या, और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज विच आई डू नॉट वांट यू टू फॉरगेट इज अ हेयर ब्रश, क्योंकि डीटैंगलिंग इजी होना चाहिए हॉलिडे पर. यू डोंट हैव अ टाइम, इतना तो टाइम ही नहीं होता कि आप पहले बैठ के फिंगर डीटैंगल करो और फिर कुछ करो. तो एक ऐसा ब्रश लेके जाओ विच वर्क्स ग्रेट फॉर यू फॉर डीटैंगलिंग एंड विच कैन बी यूज फॉर स्टाइलिंग ऑल्सो. मेरे लिए वो ब्रश ये है. दिस इज अ कर्ल कीपर फ्लेक्सी ब्रश. दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट. मैं इसको 4 साल से यूज कर रही हूँ, शायद 5 से. मेरा सेकंड ब्रश है. एक मैंने इतना ट्रैवल करा था कि उसके ब्रिसल्स टूटने लग गए थे बिकॉज यू नो आई जस्ट पुट इट इन माई बैग. तो हाँ, बट दिस माई सेकंड ब्रश. इसको भी आई थिंक 2 साल तो हो गए हैं अभी. सो आई लव दिस ब्रश, रियली रियली लव दिस ब्रश. मेरे लिए ये बेस्ट वर्क करता है फॉर स्टाइलिंग एंड डीटैंगलिंग बोथ. अगर आपके पास ये है तो आप ये कैरी कर लो, विच एवर इज योर फेवरेट ब्रश. अगर आपको एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इफ यू थिंक ये आपके लिए नहीं है, देन यू कैन सी दिस वन. ये ब्यूटी सीक्रेट्स का ब्रश है जो मैंने Amazon से लिया हुआ है. ये काफी रीजनेबल है, अराउंड 300 के अंडर आ जाता है ये. इससे भी आप स्टाइलिंग और डीटैंगलिंग दोनों कर सकते हो. सो दिस कैन बी अगेन अ गुड ऑप्शन. आई विल नॉट से कि ये कर्ल कीपर जितना अच्छा है, बट डिसेंट ऑप्शन है. तो या, और इफ यू हैव एनी अदर ब्रश जिसके लिए आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, आप वो कैरी कर लो. इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू, बट कर लेना बिकॉज दे कम वेरी हैंडी, वेरी हेल्पफुल. Another very important thing that I forgot is I always carry a turban. इस बार मैंने ये वाला किया था कर्ली मेसी का. ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है. तो या, you can carry any microfiber turban because it will help you to get your hair dry much faster than using a normal towel, और protect भी करेगा. normal towel please मत use करना because what's the point of just spoiling your whole hair. कभी अगर turban carry करना भूल जाओ तो अपना कोई भी t-shirt use कर लेना. So this is what I carry for my holiday. बोलने में सब बहुत ज्यादा लग रहा है, बट व्हेन यू विल पैक यू विल सी एक छोटू से बैग में सब आ जाता है. बस ब्रश थोड़ी ज्यादा जगह लेगा, उसके अलावा और कुछ भी ज्यादा जगह नहीं लेता है. सो यस, नाउ कमिंग टू रिफ्रेशिंग. मैं कैसे अपने बालों को रिफ्रेश करती हूँ, आई विल टेल यू. जैसे अभी अगर ये मेरे बाल हैं, दे आर लुकिंग नाइस, आई विल जस्ट गो विद देम. हो सकता है मैं जब भी थोड़ा सा वाटर लेकर अपने बालों में कभी लगा लूंगी, व्हेन आई एम वॉशिंग माय हैंड्स, किधर भी वॉशरूम में, इफ आई फील द नीड, मैं ऐसा कर लेती हूँ. बट बाय डे 2 और डे 3 व्हेन आई एम लीविंग इन द मॉर्निंग, आई टेक वेरी लिटिल लीव इन माई हैंड, या जो भी मैंने क्रीम या लीव इन कैरी करा है ऑन वेट हैंड्स. फिर मैं अच्छे से एमल्सिफाई करती हूँ, आई गो थ्रू माई हेयर. फिर मैं थोड़ा और लीव इन लेती हूँ, आई गो ऑन द अदर साइड. अब ये लीव इन लगाने के बाद आई जस्ट टेक सम प्लेन वाटर एंड आई अगेन गो ओवर माई हेयर. फिर मैं वापस वेट हैंड्स पे थोड़ा सा जेल लेती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकती हूँ कभी कभार, एंड अगेन आई गो थ्रू ऑल माई हेयर. ठीक है, दिस इज हाउ आई रिफ्रेश माई हेयर.
इससे बाल ऐसे वेट फील नहीं होंगे आपको, विद इन 10 मिनट्स तो वंस यू आर आउट सूख जाएंगे एंड दे लुक नाइस। पूरे दिन के लिए काफी मैनेजेबल से रहते हैं, डीटैंगल भी नहीं होते हैं, बिकॉज जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर लॉस हुआ है वो उन्हें वापस मिल जाता है। सो इट्स वेरी वेरी हैंडी। दिस इज माई गो टू रिफ्रेश टेक्निक। कभी कभी होता है कि डे 4 आ गया है, माई हेयर इज नॉट फीलिंग डर्टी, आई डोंट नीड टू वॉश और बट आई वॉन्ट माई हेयर टू लुक वेरी वेरी नाइस। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ अपना फ्रंट सेक्शन लेती हूँ, उसको मैं हल्का सा वेट करती हूँ, नॉट लाइक वेरी वेट बट लाइक हल्का सा वेट, एंड आई अप्लाई क्रीम, थोड़ा सा जेल, और फिर मैं ये वाला ब्रश लेकर ऐसा अच्छे से पुल कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, ये जो पूरा फ्रंट सेक्शन है इट जस्ट लुक्स लाइक हाउ इट लुक्स ऑन वॉश डे। इसको सूखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट बिफोर योर ब्रेकफास्ट आप कर लो, करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। एंड इन एवरी पिक्चर योर फ्रंट हेयर जो आपके फॉल कर रहा है वो बहुत एकदम फ्रेश कर्ल्स लगते हैं। बाकी तो आप नॉर्मली रिफ्रेश कर ही सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई डू। अगर आपको करना है तो दीज आर easy things to do and they make your curl look very very nice. So yeah guys, that is it for this video and I hope it has helped you and made you understand how to travel light, what to carry, how to do your refreshes, and hopefully making your travel more curly and more easy because yeah, that's what my intention is. So yeah, thank you so much for watching this video.